सुप्रभात। सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। वर्ष 2022 और हम उपस्थित हैं हमारे विद्यालय की उभरती हुई प्रतिभाएं लेकर। एक्सपो, जी हाँ, ये माध्यम है हमारे विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का। और हमारा उद्देश्य नव प्रतिभाएं सामने आए, नव प्रतिभाएं सामने आए, नव भारत का भाल सजाएं, कला साहित्य नाटक सुरों की धार बहाएं, सारे विश्व पर बस हम छा जाएं, मेरे देश की ललित कलाएं सारे भारत की शान कहलाएं, मेरे देश की ललित कलाएं सारे भारत की शान कहलाएं, नव प्रतिभाएं सामने आए। यही उद्देश्य है हमारे इस एक्सपो प्रस्तुति का। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारी विद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटर अनीता वडेरा मैम और हमारी प्रधानाचार्य सीमा अग्रवाल मैम से कि वे आएं और अपने शुभ वचनों के द्वारा हमारे छात्रों का मार्गदर्शन करें। Dear parents and my dear students, a very good morning to all of you. It is with immense joy and pride that we organize Expo 2022, a motley of creativity, talent, knowledge, and 21st century skills. This annual event is of utmost significance for it offers students an opportunity to depict diversified themes after exploring, investigating, analyzing, problem solving, designing, and editing. Collaborative nature of Expo not only enhances their skill in team building and leadership, but also reinforces the social and emotional learning. Dear parents, we view our world with a global perspective now. The aim of this project is to give learners an environment which stimulates intrinsic curiosity, inquiry based, and experiential learning in hope to transform them into individuals who become successful professionals, civic leaders, and informed citizens of the global society. Dear children, I have complete faith that this year too, Expo has given you a brilliant platform to unleash your hidden potential and fly with broader wings. I hope you have also learned to understand, appreciate, and reciprocate the global issues and are progressing towards becoming an active participant in addressing and resolving them. Here, I would like to share a poem. Not everyone gets it. Not everyone gets it right the first time. Success is unfortunately a wicked, difficult climb. However, for those who just don't lose hope, success will throw down a life-saving rope. Work hard, work smart, and you will succeed. Don't follow the rest of the world, take lead. All my best wishes I send to my dear students. I hope you keep getting successful till the end. I would like to congratulate Principal Seema Agarwal, the proud parents, supervisory heads, class coordinators, and the team of most hardworking teachers and sincere students on the accomplishment of this sterling event. I look forward to witnessing the enthralling and gripping presentations by my dear students. Thank you, dear children, and all the best. May God bless you always. A very pleasant good morning to dear parents and my dear students. Expo is one of the most popular and sought after annual events of the school as it taps talents and provides to the children an opportunity to explore their potential to the fullest. Expo 2022 focuses upon bringing a new level of innovation and designing. The varied themes covered provides the students a chance to research, analyze, think critically and creatively. The preparation and presentation shall allow the learners to engage in fruitful collaboration and experiential learning. Dear parents, if we are to prepare students for success in life, we need to prepare them for a project-based world.
Expo connects students to the world beyond the classroom and makes them ready to accept and meet challenges in a way that mirrors what professionals do every day. I hope you will appreciate the school's endeavor in developing children into confident individuals equipped with 21st century skill. Dear students, I am sure that like every year, this year too, you have participated in life. We need to prepare them for a project-based world. Expo connects students to the world beyond the classroom and makes them ready to accept and meet challenges in a way that mirrors what professionals do every day. I hope you will appreciate the school's endeavor in developing children into confident individuals equipped with 21st century skill. Dear students, I am sure that like every year, this year too, you have participated with utmost zeal and enthusiasm. I am certain that you have put your best foot forward to showcase your themes and in the process enhance your creativity, interpersonal skills, and IT skills and boosted your confidence. As someone rightly said, and I quote, I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship. I would like to extend my sincere gratitude to you, dear parents, for your motivation through your constant support and cooperation. I would like to congratulate the supervisory in charges, teacher coordinators, and the entire team of diligent and devoted teachers for their tireless efforts to put up a grand event. I am eagerly waiting to witness some marvelous and inspiring presentations by my wonderful children. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण व मेरे प्रिय साथियों, एक्सपो माध्यम है अपनी मन की बात को सामने रखने का, अपने सपनों को उड़ान देने का और अपनी रुचियों को पूरा करने का। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे प्रधानाचार्य जी का, जो हमारी प्रस्तुति में हमारे साथ हैं। मैम, आपका तहे दिल से स्वागत है। कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यम। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गणेश स्तुति से।
संस्कारों की है खान, सबको देती मान सम्मान। वेद पुराणों ने जो बतलाया, माता पिता ने वही सिखलाया। सदाचरण जीवन में अपनाया, हमारा मान हमारी शान, हमारा भारत हमारी जान। जी हाँ, विश्व की प्राचीनतम महानतम संस्कृति, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली, जीने का ढंग सिखाने वाली। कितने सपने, कितनी आशाएं, कितनी उम्मीदें होती हमारे माता पिता को हमसे, हमारे शिक्षक, हमारा समाज, सभी हमें खुशहाल जीवन जीते देखना चाहते हैं। लेकिन आज के बच्चे, मेरे जैसे मासूम बच्चे, अपन का जो मन करेगा वही करेंगे कि फिलॉसफी अपनाते हैं और फंस जाते हैं ऑनलाइन गेमिंग के जाल में। हाँ, ऑनलाइन गेम्स, बच्चों के दिन की शुरुआत के साथी गेम्स, बच्चों के दिन भर के भी साथी गेम्स, बच्चों के रातों के भी संगी गेम्स। गेमिंग की काल्पनिक दुनिया इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी इसमें आता है सारी दुनिया पीछे छोड़ जाता, बस गेम का दीवानापन आंख कान दिमाग गेम्स के हवाले कर जाता। हमारी आज की प्रस्तुति गेम्स के लत की शिकार अमाना की कहानी है। तो आइए देखते हैं जब से गेम्स उसकी जिंदगी में आए तो क्या क्या बदल गया। तो प्रस्तुत है अमाना। अमाना, जल्दी उठो, तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। हाँ माँ, बस 2 मिनट। बेटा चलो उठ भी जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। कुछ नहीं है मम्मी। अमाना जल्दी बताओ, तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? सच में मम्मी कुछ नहीं है। अमाना जल्दी बताओ, तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? तुम्हारे पिताजी का फोन? तो पूरी रात इसको लेकर सोई? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पिताजी सुबह से इसे ढूंढ रहे हैं। वो मम्मी मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, मैं रात भर वही बना रही थी। आइंदा अगर तुमने ऐसी गलती फिर से की तो तुम्हारी खैर नहीं। बदतमीज। सॉरी मम्मी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे भी अपना एक खुद का फोन चाहिए। काश मेरे पास भी फोन होता। मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है। काश। मैं हूँ ब्लडी मैरी, मैं बच्चों को डराती हूँ। मैंने अमाना का दिमाग पूरा कंट्रोल में कर लिया था। मैं चाइनीज रेस स्क्वाड वॉरियर हूँ। मैंने अमाना को स्क्वाड फाइटिंग सिखा ही दी थी कि उसकी मम्मा ने सारे गेम में आग लगा दी। कितना मजा आ रहा था अमाना के दिमाग के साथ खेलने में। मैंने तो उसका पूरा दिमाग कंट्रोल में कर लिया था। हाँ, मैं उसको कुकिंग सिखाने ही वाली थी कि उसकी मम्मी आ गई बीच में। मैं हूँ पोकेमॉन गो। मैं बच्चों को डराता हूँ और उन्हें पे काबू में करता हूँ। अमाना अब मेरे वश में है, मैं उसे बिगाड़ दूंगी। मैं हूँ बाइकर और मैं बच्चों को डराती हूँ हाई स्पीड से। मैंने अमाना को गोली मार ही रही थी कि उसकी मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी खाना तैयार हो गया? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। जल्दी करो ना, मैं लेट हो रही हूँ। मम्मी मम्मी हो गया? हाँ बेटा ये लो। ठीक है मम्मी। ओह, मैं अपनी हिस्ट्री की नोटबुक तो रूम में ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे ये न्यूज़पेपर वाला भी ना, अरे सुनती हो, ये अखबार वाला गलत न्यूज़पेपर दे गया। ओफो, फिर क्या हुआ? अगर एक दिन गलत न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आप कौन से प्रधानमंत्री बनने वाले हो? अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अमाना कहाँ है? अपने कमरे में है। अमाना गुड मॉर्निंग। पापा मुझे आज बहुत लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ। रुको अब ये बताओ कि तुम मेरा फोन मुझसे बिना पूछे क्यों ले जाती हो? पापा को ना मुझे बहुत सारा काम होता है। अब तो ट्यूशन टीचर ने भी कहते हैं कि मुझे अपना नया फोन ले लेना चाहिए। और आपको पता है मेरे मैथ्स टेस्ट में कितने आए? कितने? 9.5 out of 40। क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे पास अपना खुद का फोन है, मेरे सारे दोस्तों के पास है। अब तो ये रहा आपका सेकंड हैंड फोन, अब तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। अमाना रुको। हाँ जी। अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे को नहीं करनी। अरे करो तो। नहीं करनी। अरे करो तो। ये लो कर। घंटा है ये फोन? हाँ, ये तुम्हारा नया फोन है। यस, ये? अरे हाँ।
सच्ची? अरे हाँ। थैंक यू पापा, यू आर टीममेट, आई लव यू। क्या हुआ? आप ही ने पापा को बोला ना कि मुझे नया मोबाइल दिला दे। नया मोबाइल? आपने इसको फोन दे दिया? अरे हाँ। मैंने आपको मना किया था ना। अरे तो क्या हुआ, हमारी एक ही तो बेटी है। आप जानते नहीं हैं, आजकल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। और तुम्हें नहीं पता कि इस फोन से हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए। हम इस फोन से गूगल अकाउंट से कोई भी एजुकेशन साइट एक्सेस कर सकते हैं और ये अपना होमवर्क भी कर सकती है और दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें भी ढूंढ के कर सकती है। और बुरी चीजें। अरे जाने दो ना, वो पढ़ती भी तो है। आप लोग अपना झगड़ा करते रहो, मैं तो जा रही हूँ। बाय, गुड बाय। आपको पता है उसके बाद होमवर्क करने के लिए आपका फोन और मेरा फोन भी तो है। अरे जाने दो ना, सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो क्या मेरे भी पीछे? क्या जाके देखो कौन है। हाँ जा रहा हूँ। सर ये आपको 100 पिज्जा का ऑर्डर। 100 पिज्जा? मैम आपके घर में क्या कोई पार्टी है? कोई पार्टी है? कोई बात नहीं है। मैम ये देखिए बिल पे आपका ही फोन नंबर, घर का एड्रेस लिखा हुआ है। लेकिन हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया। और मैम पेटीएम से पे भी हो चुका है। पेटीएम से पे भी हो गया। अरे एक मिनट, तुम्हारा फोन किसके पास था? मेरा फोन। आयुष, जी मम्मी। तुमने पिज्जा ऑर्डर किए? हाँ मम्मी। 100 पिज्जा ऑर्डर किए? मम्मी मुझे भूख लग रही थी। भूख लग रही थी तो 100 पिज्जा ऑर्डर कर लिए। पिछली बार 100 नंबर डायल कर दिया था तो पुलिस आ गई थी घर पे। और तो बच्चों को फोन। अरे ठीक है। मैम मैं इसे कहाँ रखूँ? सिर पे रख दो मेरे। अरे रुको, पास में जाओ, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होगी, वहाँ पे बच्चों को बांट दो। रुको, इनको भी बात दो झुग्गी लोग। क्या? और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने सचमुच इस दुनिया को बहुत बदल दिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। सब कुछ बस एक बटन का खेल है। लेकिन क्या हम इस टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के बारे में जानते हैं? गेम्स, सोशल साइट्स, गूगल, नेटवर्किंग के इस जाल में हम जुड़ तो गए हैं, लेकिन क्या हम इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं? और क्या हम मोबाइल के चक्कर में अपनी जिंदगी से तो नहीं खेल रहे? क्या आजकल के बच्चे गेम्स के चक्कर में एक जाल में वो भाई हट यहाँ से। अरे देखो पता नहीं है वो कौन है। कौन है? अरे भाई वो स्कूटर डॉन है। मैं ऐसे दोनों से बहुत लड़ा हूँ। अरे भाई तू तो क्या है यार। अरे चुप बैठो, एक मिनट रुकियो। अरे कैसे आना, पहले ही बोला था मैंने। इधर आ मुर्गाबन, सॉरी बोल। सॉरी बोलना। सॉरी। नाम क्या है तेरा? अबे नाम क्या है तेरा? सोहम। हाँ चल पकड़ मेरा बैग और क्लास में रखा और मॉनिटर को बोल दियो कि पीओपी की अटेंडेंस लगा दे। चल गुड। और रुक, जेब दिखा। अच्छा 50 का नोट इतना बड़ा हो गया है? कल से 500 का लेके आई हो। चल निकल। हाँ यार पार्टी ऑर्गेनाइजर खुद ही नहीं आ रही। अरे हाय। ओह नया फोन। क्या करूं, फोन मिलने के बाद तो स्टैंडर्ड बन जाता है ना। स्टैंडर्ड। अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या खाओगे? ऐसा तो है पिज्जा ऑर्डर कर ले। अच्छा चलो ठीक है, मारो। मम्मी को बोला था क्या करूं? स्क्रीन नंबर 34 लगा। आइडिया नंबर 34। हेलो मम्मी, मैं संजना के घर आई थी तो घर आ जाऊँ। वाह हमारे साथ रहेगा, तू भी छोटे मोटे झूठ बोलना सीख गई है। हाँ और तू बड़ी हो जाएगी तो और भी बड़े बड़े झूठ बोल और नंबर 1 झूठी बन जाएगी। अच्छा वैसे करण, तूने अपने स्टेटस पे ये क्यों डाला? यूजर्स ने गेमर्स बना दुनिया छोड़ दो। This is the philosophy of KOK because we are proud gamers. गेमर्स। अच्छा तुम लोग के हिसाब से सबसे डेयरिंग गेम कौन सा है? तू ही बता कौन तेरे हिसाब से कौन सी गेम है सबसे डेयरिंग? मेरे साथ सबसे ज्यादा डेयरिंग गेम है चिड़िया घर। हम बताते हैं कौन सी गेम है हमारे हिसाब से सबसे डेयरिंग। पोकेमॉन गो मैन, टाइटैनिक, ब्लू व्हेल। हाँ करण, तुम ब्लू व्हेल गेम खेलते हो? हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? अरे मत खेला करो, ये बहुत खतरनाक गेम है। और हम खतरों के खिलाड़ी। अरे तुम लोगों को शायद पता नहीं है, इस गेम में बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। जो डर गया समझो मर गया। याद रख, लूजर्स नहीं गेमर्स बन, वरना फिर दुनिया छोड़ दो। यही नियम है। अच्छा माना तेरे पास नया फोन है, उसके लिए डेयर तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं मैं नहीं करने वाली। अरे डरपो, डर गई। अच्छा चलो ठीक है, करो। ठीक है मेरा डेयर ये है, मुझे टेरेस पे जाके सेल्फी क्लिक करनी है। अरे पागल हो गए हो, मैं नहीं करने वाली है। ये देख उन्हें कितनी सारी ली है अलग अलग जगहों पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट ऑल्सो। पागल हो गए हो, मैं नहीं करने वाली, मेरी कितनी बदनामी होगी स्कूल में। जो डर गया समझो मर गया। अब तो चिंता मत कर, हम होंगे तेरे साथ। पहले तुम लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा
कभी नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। चलो ठीक है यार, अब चलते हैं। हाँ अमाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस हमारे घर से नोटबुक्स लेने आई थी। ओह वाह, कौन सा जना का घर है? वो तो मैं वी नो दैट यू आर विद करण। तू अपने नए फोन की खुशी में पार्टी कर रही हो ना? यू आर स्पाइंग ऑन मी। हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ हैं। तुम्हें पता है करण एक अच्छा लड़का नहीं है। He is spoiled and you shouldn't be friends with him. उसके पापा स्कूल के चेयरमैन हैं, स्कूल कुछ नहीं कहता। अमाना, वी आर योर रियल फ्रेंड्स, प्लीज बिलीव अस। वो भी मेरे दोस्त है, मुझे उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ का नहीं पता, बट वो भी मेरे दोस्त है। We were just here to give you a piece of advice. अभी तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें हमारी बात माननी है या नहीं। होगी अमाना, बट प्लीज मेक अ वाइज चॉइस। ठीक है, बाय बाय अमाना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, प्रैंक कॉल करो। यार ये देख, बहुत सारी फेक आईडी है, इससे हमारा रिएक्ट नहीं करते। करण ये फ्रेंड कॉल कर। हेलो, हु आर यू? मैं हूँ घोस्ट राइडर। तुम्हें अपनी क्लास टीचर को चिपकली बोलना होगा। नहीं बोलूंगी, क्या कर दोगे तुम? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे टेरेस वाली सेल्फी को सोशल मीडिया पे लीक कर देंगे। तुम्हें किसने बताया इसके बारे में? हमें याद है। अरे सुनो, तुम्हें पता है मुझे कल एक कॉल आया था। किसका? वो अपना नाम घोस्ट राइडर बता रहा था। घोस्ट राइडर? हाँ। मैंने सुना बहुत डेंजरस आदमी है। हाँ, और इसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, उसके पास ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि वो तुम्हारी सारी बातें जान सकता है। सारी बात? हाँ। लेकिन उसने तुम्हें कहा क्या? तो तुम्हें याद है तुम लोगों ने मुझे मुझे टेरेस पे जाके सेल्फी क्लिक करनी है। अरे पागल हो गया? उसने कहा अगर मैं अपनी क्लास टीचर को बुरा नहीं बोलूंगी तो वो मेरी टेरेस वाली सेल्फी लीक कर देंगे। ओह माय गॉड। मैंने सुना है अगर हम उसको टास्क कर देते हैं तो फिर वो हमें छोड़ देता है। हाँ, अब तो तुम्हें ये टास्क करना ही पड़ेगा। अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सस्पेंड हो सकती हूँ। अरे मेरे पापा स्कूल के चेयरमैन हैं, हम ऐसे काम हजारों बार कर चुके हैं पर आज तक नहीं फंसे। और तू चिंता मत कर, वैसे भी हमारे बुजुर्ग एक बहुत अच्छा सच छोड़ दिए हैं। गलती करो बार बार, सॉरी बोलो 8 बार। सॉरी 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 सॉरी, हाँ यही बोलना है। कुछ पिल्लारी भाग कमेंट, तुम अपने आप को समझती क्या? आउटडेटेड ऑर्थोडॉक्स कहेंगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ क्यों, तुम्हें नहीं पता? अभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करती हूँ। सॉरी। सॉरी? इतना कुछ बोलने के बाद तुम सॉरी बोल रही हो? हेलो। हेलो जी कौन? आप अमाना की मदर बोल रही हैं? जी मैम। मैं अमाना की क्लास टीचर। ओके मैम। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा मैं अगली हूँ, आउटडेटेड हूँ, ऑर्थोडॉक्स हूँ और ना जाने क्या क्या। लेकिन वो तो ऐसा कह ही नहीं सकती। अगर आप 30 मिनट के अंदर अंदर स्कूल नहीं आए तो आपकी बेटी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड? ओके ओके। सुनिए, इधर आइए। अरे हाँ बोल, क्या हुआ? अमाना की क्लास टीचर का कॉल आया था। हाँ तो उन्होंने कहा कि अमाना ने उनके साथ बदतमीजी की और अगर हम 30 मिनट के अंदर अंदर स्कूल नहीं पहुंचे तो अमाना सस्पेंड हो जाएगी। क्या? वो ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा तो फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ माँ? आपकी बेटी ने मेरे साथ मिसबिहेव करा है। क्या? वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ कैप्चर हो चुका है। आप अमाना से ही पूछ लीजिए। अमाना, क्या तुमने सच में ऐसा करा? हमारा जवाब दो। अमाना। हाँ मैंने ये सब बोला था, पर मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं बोला। असल में मुझे कल एक कॉल आया था, उन लोगों ने कहा अगर मैं अपनी टीचर को ये सब नहीं बोलूंगी तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं बोला। अमाना, अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि तुम कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगी? अरे ये सब तमाशा अपने घर जाकर कीजिए। चलो। चलो अमाना। मुझे मजबूर किया गया था मम्मी। अब तो बात कर लीजिए उससे। देखिए ये बहुत हो रहा है। उस लड़की के बारे में मुझसे बात भी मत करो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसे फोन मत दो। आपने मेरी बात काटी और उसे फोन दिया। ये सब आपकी गलती है। आप जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, मैं अकेले ही उससे बात करूंगी। हाँ जाओ। अमाना, दरवाजा खोलो। अमाना। दीदी दरवाजा खोलो। आयुष तुम जाओ और ऊपर से देखो दीदी क्या कर रही है। दीदी रुको। दीदी रुको। अरे ये क्या है? रुक जाओ। हमारा तो शायद अभी इसका सॉल्यूशन नहीं होता। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है पापा। हमारा लाइफ कभी खत्म नहीं होती। ये सही कह रहे हैं बेटा। कहते हैं कि मन के हाल है मन के जीते जी। अगर तुमने एक गलती करी इसका मतलब ये नहीं कि तुम
बेटी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। सबसे बड़ी चिंता का विषय है ऑनलाइन गेम्स के प्रति बढ़ता रुझान। इनकी लत केवल छात्रों का स्वास्थ्य ही नहीं छीन रही, लेकिन उनका मानसिक संतुलन भी बिगाड़ रही है। गेमिंग मनोरंजन के लिए है, जीवन पर लगाम लगाने के लिए नहीं। गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि उसे नियमों से बांधने की आवश्यकता है। अगर हमारी प्रस्तुति ने आपके मन को छुआ हो तो आइए प्रण कीजिए, गेमिंग की लत से दूर रहेंगे, गेमिंग की लत से दूर रहेंगे, इसका शिकार नहीं बनेंगे, इसका शिकार नहीं बनेंगे, हर संभव प्रयास कर इससे बचेंगे, हर संभव प्रयास कर इससे बचेंगे। नाटक से ये तो समझ ही लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से दूर ही रहना चाहिए। गेमिंग के तो नुकसान भी है, पर ऑनलाइन के तो बहुत सारे फायदे भी है। यही बात थोड़े चटपटे अंदाज में समझाने आ रही है आप लोग के सामने सांची बंसल। नमस्कार, मैं सांची बंसल हूँ। आप लोग शायद हंसना भूल गए हैं, इसीलिए आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सारा जमाना ऑनलाइन का दीवाना, जमाना कहे अब तो इसका ही है साथ निभाना। वो भी एक समय था जब एक शब्द खोजने को 10-20 किताबें टटोलते थे, पर अब तो गूगल बाबा का है ठिकाना। शॉपिंग करना होता था चटपटी चाट खाना, पर अब तो अमेज़न और स्विगी से ही मंगाना। एक तहजीब और सलीका था स्कूल जाने में, घंटों तो लगते थे बाल बनाने में, पर अब तो जूम पर बैठ जाओ बिना मुंह धोए पजामे में। ऋषि मुनि ढूंढते रहे भगवान को, पर हम, मेरा लैपटॉप कहाँ है, नेटवर्क कहाँ है, अब यही है तराना। दोस्तों को मिलने के लिए ढूंढते थे बहाना, सोशल मीडिया पर दोस्त तो बहुत हैं, पर मुश्किल है उस खास का पाना। कभी माता पिता के चरणों में होता था ठिकाना, पर अब तो खाना पीना सोना ऑनलाइन का ही गुनगाना। दादी की कहानियों से नींद आया करती थी, पर अब लाइक कमेंट शेयर के बिना अधूरा है फसाना। व्हाट्सएप के बिना तो जीवन का पार ही नहीं, मैदानों में खेलना बन गया है एक अफसाना। तभी तो कहते हैं सारा जमाना ऑनलाइन का दीवाना, जमाना कहे अब तो इसका ही है साथ निभाना। मनोरंजन की दुनिया की ओर अब विहान और लक्ष्य आप सभी के सामने एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो नाचो। If you the